Friends, this is my second video on case studies, important case studies for energy companies like IOCL, HPCL, etc. When you go to the interview, they give you a situation and they give you a problem, and you have to give the solution to that problem. This is called case study. This also matches closely with group task. So IUCL, HPCL, and these kind of companies, Gas Authority of India Limited, and all these companies have some kind of case studies and group task in the interview, and you should be aware about that. That checks your professional acumen and professional, capability to take a decision. Now, in my today's lecture, this is my second lecture on case studies. First was related to industrial safety, especially fire safety. So, if you ask me what are the most important case studies, vertical for these companies, I'll say safety, in which fire safety is very important. Second comes sales of the product, sales strategies, how you'll promote the sales. And third is new marketing strategies, digital marketing, new marketing strategies in the wake of, these emerging technologies are there nowadays. So how you will market your product. So this is the third case study. Fourth is human relation related, HR related case studies, which are there in the, company. And then business development related case studies. So these are couple of verticals which are very, very important. This is my second video, and this is related to the sales case studies. And this video and document is made on the basis of previous years such case studies asked in the interviews of IUCL, HPCL, and all. So those of you who are going for IUCL, HPCL, GAIL, or oil companies or gas companies, please go through these case studies and try to develop some kind of knowledge in this. Now, friends, let me share my screen, and I will start with my second lecture of case studies. And this one, I'm sure it is visible to you, but I will increase the font of document for you. So this is my second case study, and that is related to sales case study. See this particular situation here. So then one petrol pump is located at particular place. This was recently asked, and petrol pump is doing good business uh, till a flyover is constructed just in front of the petrol pump. And you must have observed this practical situation happening many places in India. एक पेट्रोल पंप है जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसके सामने एक फ्लाईओवर बन जाता है. अब फ्लाईओवर बन जाता है तो सारा ट्रैफिक जो पेट्रोल पंप के सामने से जाता था वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाता है, तो पेट्रोल पंप के सामने ट्रैफिक कम हो जाता है. नाउ द सेल्स हैज गॉन डाउन. हाउ यू विल ब्रिंग बैक द सेल्स? वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन, वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो कुछ स्टेप्स जो आप ले सकते हैं. सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स होता है कि यू आर टू गैदर इंफॉर्मेशन. सो असेसमेंट एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेज. कैसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? दैट व्हेन दिस हैपेंड, कितना टाइम हो गया इस फ्लाईओवर को बने हुए. इट मे बी दैट रिसेंटली इट वाज स्टार्टेड एंड people were using the flyover, but later on they realized that okay, petrol, we want to take the petrol and we need to have accessibility. दूसरा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, ये पेट्रोल पंप कहाँ सिचुएटेड है, वेयर इज दिस सिचुएटेड, सिटी, हाईवे, अवे फ्रॉम सिटी, वेयर, लोकेलिटी कहाँ पे है. तीसरा, that is the connectivity to petrol pump good or not? Can people approach petrol pump? Because there may be highway, but people may approach petrol pump easily. So these are the informations which will be very, very helpful for you to make a strategy. तो कोई भी डिसीजन या स्ट्रेटेजी बनाने से पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. The moment you have got the information, you have data with you, you have information with you. Now it is easy for you to make a strategy. You can even make the decision whether you want to promote sales of this petrol pump only, or you want to relocate the petrol pump. It may be temporary phenomena, and after some months it may again come back to the normal sales. So you need to see the proper connectivity path, और connectivity क्या है उस पेट्रोल पंप को पहुंचने तक के लिए. प्रॉपर कनेक्टिविटी है कि नहीं, ये आपको बेसिकली पता करना है. कस्टमर सर्विस आप बढ़ा देंगे. जैसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग जाते हैं या और कस्टमर सर्विस लेने के लिए लोग जाते हैं, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ी चीज है. और साइन बोर्ड यूज करो, लोगों को पता लगे कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पे तुम्हें करना है. और सारे का सारा ये असेसमेंट करो कि कैसे ये चल रहा है. अगर कुछ भी वर्क नहीं करता है तो कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट करो. ये टेक्निकल टर्म है, कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट, कि अगर मेरे को कितनी सेल्स का बेनिफिट होगा. लेट अस से अगर मैं इस पेट्रोल पंप को यहाँ से किसी दूसरी जगह रीलोकेट कर दूं तो मेरे को कितना लॉस होगा, मेरे को नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, पुरानी कंस्ट्रक्शन का मेरे को बेनिफिट नहीं होगा, नई जगह जाना पड़ेगा, तो कितना खर्चा आएगा. लेट से 50 लाख. लेकिन सपोज मंथली मेरे को 5 लाख रुपए का सेल्स प्रमोट होता है, तो दैट आई कैन रिकवर विद इन अ ईयर.
So that way you need to do cost benefit assessment. Accordingly, you need to take a call कि आपको जाना है, करना है, क्या करना है. That is something which you can do. So friends, case studies में कुछ points आपको बस पता होने चाहिए. Certain important points you should know. If you know those points, you can handle the case study. How shall you help a promoter of petrol pump whose sales are continuously decreasing for the past couple of months? पेट्रोल पंप ओनर है और आप देख रहे हैं कि उसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही हैं, तो उसको आप कैसे हेल्प करेंगे? सो सबसे पहले अगेन इंप्रूव कस्टमर सर्विस से पहले आपको गैदर द इंफॉर्मेशन. गैदर इंफॉर्मेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेज. whenever you are to basically solve any riddle, any problem, you are to gather the information. सेल्स को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना. कस्टमर सर्विस में बहुत सी चीजें आती हैं और उसमें आपका स्टाफ बिहेवियर भी आता है, उसमें अम्यूनिटीज भी आती हैं, जैसे वॉशरूम जैसी अम्यूनिटीज आपने प्रोवाइड कर दी, वो भी आती हैं. ये सारे का सारा सर्विस का पार्ट है. कई बार वो आपसे पूछेगा कि साहब एक ही जगह पे एचपीसीएल का, बीपीसीएल का, आईओसीएल का तीनों पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल पंप अपनी तरफ को कैसे कस्टमर लाएंगे? कस्टमर सर्विस. लेकिन कस्टमर सर्विस में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे वॉशरूम अच्छे होने चाहिए, सो दैट एक बार फीमेल कोई कस्टमर आए तो उनको पता हो कि भाई उस पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा वॉशरूम वगैरह फैसिलिटीज है, क्लीन है और अच्छा सेफ है, आई शुड गो देयर. सिमिलरली आपका एयर फिलिंग स्टेशन पे ऐसा ऐसा ना हो कि टाइम लगता है. बहुत से लोग हैं, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है जिसमें आपने देखा होगा कि एयर फिलिंग स्टेशन होते तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं होते हैं. फंक्शनल होने चाहिए. ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे तो समझ आएंगे कि आप पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं. फंक्शनल एयर फिलिंग स्टेशन होने चाहिए. फिर आपके पेट्रोल पंप के ऊपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने का प्रोविजन होना चाहिए. लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर आप एक ही पेट्रोल पंप से लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स या ऐसा कोई चीज दिया जाएगा, डिस्काउंट कूपन वगैरह दिए जाएंगे. आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो जिनकी सर्विसेज को कस्टमर चाहता होगा. जैसे फूड आउटलेट, रिटेल आउटलेट होते हैं कई जगह, वहां पे थोड़ा सा गैप किसी ने डालना है तो वहां पे रुकेगा, तो वहां पे आप वहां पे उनको दे सकते हैं खाने पीने का, कार वॉशिंग की फैसिलिटीज दे सकते हैं. सो दिस इज द वे यू कैन पुल पीपल इन योर डायरेक्शन. नाउ डिजिटल मार्केटिंग एक चीप मार्केटिंग होती है फ्रेंड्स, ये हम मार्केटिंग में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही चीप वे है सेल्स को प्रमोट करने का भी. मार्केटिंग से सेल बढ़ती है, नो डाउट अबाउट दैट. मार्केटिंग ब्रांड करता है लेकिन सेल भी बढ़ती है, तो सेल्स और मार्केटिंग में थोड़ा ओवरलैप भी है, डिफरेंस भी है. मार्केटिंग के ऊपर तीसरी केस स्टडी जो वीडियो है वो डेडिकेटेड उस पर आएगा. लेकिन आप ये समझ लो कि अगर आपसे पूछे चीप मार्केटिंग कैसे करेंगे, इजी वे क्या है सेल्स बढ़ाने के, then social media like Facebook, Instagram, these things can be there. You can show the facility of the amenities which you have and very good example of the customer satisfaction. So agar if there is some customer and he is very much satisfied that this is very good petrol pump, you can take a small reel or shot of that customer and put it on a website you can make. Email ke through you can be in contact with your customers, you can know about their date of birth and all, and send the messages on their birthdays and all. That can be done. Quality customer service, ये चीज को याद रख लेना. दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. वेदर यू वांट टू सेल योर एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल यू वांट टू सेल और एनीथिंग यू वांट टू सेल, बट क्वालिटी कस्टमर सर्विस इज समथिंग which is very important. Staff should be friendly, cleanliness should be there, quick service should be provided, washroom amenities should be there, and there should be a waiting lounge. Because in CNG filling station you find that CNG filling stations में there is a delay, there is a time which is taken. So you can always provide waiting lounge or food outlets, retail outlets, amenities, washroom amenities. These things can be provided, and yes, Wi-Fi also. So nowadays, there's a very important services. This is Wi-Fi service, which is if you provide, then you can write that can be this. You can provide this Wi-Fi services and all, and this is something which is very good. And also waiting lounge mein meeting room also can be provided. If some customer wants to, is traveling a lot and he wants to make use of your facilities infrastructure for meeting and all nowadays, so that can also be done. Promotion and discount ke liye discounts, promotion cards, limited offers, these things can be provided. How data analytics will be helpful? Track the information. Data analytics is very very important to make right sales and marketing strategies. I'll discuss in detail about that. But to know more about the customer and customer whereabouts and when is the birthday of the customer, those kind of things, but not to enter into the privacy part, because that is the ethical part of the sales also we will discuss, right?
Yeah, so this is the same question, like how to promote the strategy of selling more petrol or product of IUCL without much investment. So there is a digital marketing can be very, very effective for that. Now, this question is very repeatedly being asked that nowadays we have emerging technology, data science, IoT, blockchain, machine learning, artificial intelligence. How shall you make use of these emerging technologies to increase the sales of petrol pumps? As I told you, data analytics can be like to get information about the customers, track the performance of your, all the strategies, and Internet of Things, like you can make smart pumps. So smart, wherever you use the term smart, what is the meaning of that? That means using the electronic gadgets like sensors to detect any kind of leakage, or equipment performance should be good, losses can be minimized, operational efficiency can be increased. तो स्मार्ट पंप बनाए जा सकते हैं, कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक किया जा सकता है, और हम ड्वेल टाइम एट पंप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी कस्टमर को एक पंप पे कितनी देर लग रही है। तो आप जो अपना स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस गॉज कर सकते हैं कि दिस स्टाफ नॉर्मली सर्व कस्टमर इन दिस मच टाइम एंड दिस स्टाफ सर्व्स इन दिस मच ऑफ टाइम, सो दैट आईओटी के बेस पे हम कर सकते हैं। Machine learning, personalized recommendations, algorithm can be there, to analyze the customer purchase history and recommend that what he will purchase. तो यही सब चीज तो मशीन लर्निंग करता है। फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में डिटेक्ट कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी अगर सप्लाई चेन में लानी है, देन ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड। लॉयल्टी प्रोग्राम्स को इंश्योर सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, लाइक टारगेट एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करनी है, कस्टमर सेंटिमेंट्स को अगर समझना है, then you can use social media analytics. Now, augmented reality and virtual reality is also interactive experience with the customer. So suppose customer wants to know what kind of amenities are there. In future, that is gonna come. Customer is going to go to that petrol pump where he finds that, okay, I will be getting very good amenities. So augmented and virtual reality will be very, very helpful ये पता लगाने के लिए कि पेट्रोल पंप पे किस तरह की सर्विसेज हैं वहां पे, तो उसका 3D एनिमेशन व्यू उसको वहां से मिल सकता है। हाउ टू एनहांस द रेवेन्यू यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेट्रोल पंप है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बताइए उसका रेवेन्यू तुम कैसे बढ़ा सकते हो और उसकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। बिकॉज सेल का मेन पर्पज होता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? एक, स्टार्ट सेलिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। पेट्रोल यू आर सेलिंग, lubricant you are selling, can you sell some another things also which automobile owner may be looking for, like car products can be there, like travel essentials may be there, right? Or food items may be there. So diversify the product which you are selling. Value added services, I mean such services which add the value. So car washing, tire repairing, vehicle inspection, pollution certificate, so these things can be provided, and these also generate income because all these things cost you something, right? Now, nowadays we are talking about electric vehicle, and electric vehicles are going to come. So can you create electric vehicle charging stations in the infrastructure? Because they are going to come. A lot of electric vehicles are going to be there. लेकिन क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है नहीं करना है, ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपको लोकल मार्केट देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा चार्जिंग फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट देयर इन द मार्केट जहां पेट्रोल पंप है, लेकिन आपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, then it is going to create wastage because initial input will be there. So you need to do lot of cost benefit analysis, break even analysis before you decide electric vehicle मेरे को provide करना है। कन्वीनियंट स्टोर अपग्रेड्स, लाइक आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको ऐसी प्रोवाइड करनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अकॉर्डिंगली हो। सो एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट दैट, यू नीड टू प्रॉपर्ली मेक द असेसमेंट। हाउ कैन यू इंक्रीज द सेल ऑफ एलपीजी सिलेंडर इन पर्टिकुलर लोकेलिटी वेयर अदर एलपीजी सेल्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर आल्सो देयर? आपके घर में एचपीसीएल का आता है, आपने इंडेन का लगवाना है, तो कैसे करेंगे? The only, let me tell you one thing, more or less the products are same. LPG cylinder of BPCL, Bharat Petroleum का, या HPCL या Indian, all are same, more or less. Only one place where you can make dent is customer service, customer delight, customer satisfaction. So superior customer services इसमें easy and quick booking आता है, prompt delivery आता है, efficient complaint resolution, personalized service, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्क फोर्स है, जो स्टाफ है, उसकी ट्रेनिंग। कर्टियस स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो कर्टसी उसमें हो और अच्छी सर्विस करे। और कई बार
female are alone at home, and also they should be properly trained how to provide the service. वैल्यू एडिड सर्विसेज दी जा सकती हैं कि आपके घर में सिलेंडर डोर पे नहीं, हम अंदर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं घुसना है घर में। आपने पूछना है कि मैम डू यू वांट दैट वी शुड पुट इट समवेयर इनसाइड, तो वो कस्टमर जो आपका स्टाफ है उसकी आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। डिलीवरी ऑफ द सिलेंडर कहाँ करना है, फिर उसको फिट करना, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि लगाना, इंस्टॉल करना, फिर थोड़ा सा सेफ्टी ट्रेनिंग देना कि मैम आर यू अवेयर, लाइक लेट इट नॉट बी ओपन, लेट इट दिस। तो जो आपका स्टाफ है वो बाकी लोगों की, बाकी कंपनीज के स्टाफ से अलग दिखना चाहिए। सेफ्टी चेक और इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करो, 24/7 सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर सको कि अगर इमरजेंसी आ गई, लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया, तो किसको अप्रोच करेंगे वो। एज ऑफ नाउ पीपल डू नॉट कॉल सर्विस प्रोवाइडर, बट 24/7 सर्विस हो जिसमें अचानक गैस खत्म हो गई एंड अर्जेंसी स्टेज, तो क्या करना है, तो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करो। लॉयल्टी प्रोग्राम्स इसमें भी होने चाहिए। टारगेट मार्केटिंग इसमें भी करनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, टारगेट मार्केटिंग जिसमें आप अपनी सर्विसेज और सेटिस्फाइड कस्टमर के बारे में लोगों को बताओ कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जरूर करनी चाहिए, मोबाइल ऐप प्रोवाइड करना चाहिए, ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो ये आपका सर्विस को इंप्रूव कर देगा बाकी सर्विस प्रोवाइडर से। आपको कोई, अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया यूसीएल ने, तो उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे सेल्स की। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो, जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए ऑडियंस क्या है। कस्टमर आउटरीच करो, मार्केट आउटरीच, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचो। मैसेजिंग करो, इवेंट अरेंज करो, पब्लिक आउटरीच करो, पब्लिक फंक्शंस करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, कंपिटिटिव प्राइस रखो उस प्रोडक्ट का, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट रखो कि उसका वैल्यू बढ़ रहा है, अगर आप ज्यादा चीज ले रहे हैं तो कॉस्ट आपको कम पड़ रही है। प्रमोशनल प्राइसिंग रखो, शुरू में आप लेते हैं तो आपको कम कॉस्ट का पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट यू शुड डू। शोरूम में इवेंट्स करो, फ्री ट्रायल्स थोड़े से दो, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स रखो, दैट आपको इंसेंटिव मिलेगा इफ यू परचेज इट वंस अगेन। एक्सक्लूसिव ऑफर रखो, एक्सीलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करो, फीडबैक कलेक्शन वगैरह दो। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक अलायंस कुछ लोगों के साथ कर लो कि ये चलोगे तो ये भी आपको साथ में मिल रहा है। जैसे पिज्जा के साथ कोका कोला मिलता है आपको, पिज्जा एंड कोका कोला दो अलग ब्रांड है, लेकिन इकट्ठे मिलके जो भी पिज्जा खाता है कोका कोला भी पीना चाहेगा, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा, तो ऐसे कोलेबोरेशन कुछ करो। जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसके लिए कोलेबोरेशन करो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं मार्केटिंग करो। तो ये जो नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं ये हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे भी, तो आप इनको इस तरीके से करो। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, राइट। सो दिस इज हाउ दिस ऑल इज टू बी डन। नाउ ये जो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हैं, ये भी आपके इसी से रिलेटेड है, तो इनको भी आई थिंक वी कैन गो फॉर इट। Right. So next is, suppose there is a petrol pump on the highway which is selling far better than the expected target. Why owner of the petrol pump should invest in sales team if it is already selling good? उसकी सेल्स अच्छी चल रही है, तो ही इज डूइंग गुड, उसका अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी सेल्स अच्छी चल रही है। नाउ पेट्रोल पंप पे है, वो क्यों अपनी सेल्स को प्रमोट करे, वो अपने सेल्स पे पैसा क्यों खर्चे। आंसर इज, आपको कंटिन्यूड ग्रोथ और एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो करनी होती है। आप कभी भी अपनी सेल्स का जो प्रेजेंट लेवल है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। अदरवाइज हम बोल सकते हैं आईयूसीएल ने 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, अब हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, काफी है। यू कैन डू दैट। सो मार्केट पेनिट्रेशन आपको करते रहना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, आपको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना है, बिकॉज ग्रोथ, जितना इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी उतनी कंपनी की ग्रोथ होगी, एंड वाइस वर्सा। तो रेगुलर ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलर ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। एंड पेट्रोल पंप जो है उसको भी, अगर कोई पेट्रोल पंप वाला रेगुलर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पेरिश कर जाएगा कंपटीशन में, और कंपटीटर आ जाएंगे एंड यू मे नॉट सर्वाइव इन फ्यूचर। तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन करते रहना है, आपको एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पर्सनलाइज्ड सर्विस लोगों को देनी चाहिए, और पर्सनलाइज्ड सर्विस देने के लिए आपको ये मार्केटिंग और सेल्स जरूरी है। आपको उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, कोलेबोरेशन डेवलप करना है। तो आपको सेल्स इसलिए करनी है बिकॉज रेगुलर ग्रोथ एंड रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू एनहांसमेंट वो कंपनी का एक प्रिंसिपल होता है, कार्डिनल प्रिंसिपल होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ का। आपको उसका पार्ट बनना है। नंबर टू, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में फोकस नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में कोई और कंपटीटर आपको
आपको कंपटीशन से निकाल देगा। फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ बिजनेस, फ्यूचर में भी मार्केट फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो अभी अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप शायद आपका जो अगर मार्केट फ्लक्चुएशन आई तो उसमें सर्वाइव ना कर पाए, और इंडस्ट्री के नए नए ट्रेंड भी आपको समझने चाहिए। अगर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेल्स स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, वो रेवेन्यू ग्रोथ और इनोवेशन के ऊपर ध्यान देती है। जैसे आईओसीएल का अपना R&D सेंटर है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फरीदाबाद में। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस मेकिंग है वो कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है। अगर कभी वो आपसे पूछे कि आपने कभी कुछ लाइफ में आज तक बेचा है, तो कोई ऐसा एग्जांपल याद करो जो आपने बेचा हो, आपकी फैमिली ने बेचा हो, आपके फ्रेंड्स ने बेचा हो, उनकी हेल्प से आपने बेचा हो। रिमेंबर दैट एंड यू कैन कोड दैट एग्जांपल। आपकी फैमिली में कोई और एलपीजी सिलेंडर आता है तो आप इंडेन का सिलेंडर क्यों लेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप ये पता करें कि जो प्रेजेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आपकी फैमिली कैसे सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड है, और उसके ऊपर आप क्या दे सकते हैं। हमने इसका पीछे भी डिस्कस किया, उसी का सोल्यूशन उसमें भी है। और फिर आपको इंडेन एलपीजी सिलेंडर का हाईलाइट करना है कि क्या उसके बेनिफिट हैं आपको, उसका कंपिटिटिव प्राइसिंग, रिलायबल डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, एडिशनल सर्विस, ये आपने इंडेन एलपीजी सिलेंडर में क्या एडवांटेज हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेल्स ऑफिसर के क्या एथिक्स होने चाहिए, उस पर क्या एथिक्स होने चाहिए अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं। आपका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर को, कम्युनिकेशन आपने उसके साथ ओपन करनी है, मिसलीडिंग कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करना जो मिसलीडिंग क्लेम हो, क्योंकि कंपनी का नाम खराब होता है। कस्टमर फोकस रखना है आपने, फेयर डील उनके साथ करनी है, कस्टमर की नीड प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर आपका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और आपको बेसिक कर्टसीज आती हैं। ऑनेस्ट कंपटीशन रखना है और रिस्पेक्ट रखनी है कंपटीटर को। कंपटीटर आपके एनिमी नहीं है, आपने उनके लिए ऑनेस्ट बिहेवियर रखना है। और क्रेडेंशियल्स आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी मेंटेन करनी है, जो कस्टमर है आपका उसकी कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करनी है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को आपने रिस्पेक्ट करना है। कभी भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड सेल्स, डू यू एग्री? आप बोले नो सर, आई डोंट एग्री, बिकॉज सेल्स में एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक डिसेप्शन, मैनिपुलेशन एंड अनफेयर कंपटीशन, ये नहीं होना चाहिए सेल्स के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप उनको बताओगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट, तो सेल्स के अंदर ये सब चीजें हैं। और टिपिकल ट्रेड्स सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या होने चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी ट्रेट होने चाहिए? एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए आप, कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव आउटलुक होने चाहिए, आप एम्पैथेटिक होने चाहिए, आपको कस्टमर की केयर होना चाहिए, उनकी नीड्स का पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, आप में परसुएसिव स्किल्स होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपके पास मार्केटिंग सेल्स का टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन आईओसीएल ने आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव लगा दिया, तो आप क्या करेंगे? सर, अगर मेरे को जब मैं आईयूसीएल ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैं कोई प्रोफाइल दिमाग में रख के नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं हर प्रोफाइल के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कभी सेल्स नहीं किया और मेरा उसमें टेम्परामेंट नहीं है, तो टेम्परामेंट एफर्ट लगा के डेवलप हो जाएगा। I'll take the training, I'll seek training from my seniors, I'll put my effort, and the moment I develop, I put effort, I learn from my seniors, I develop the strength in the sales, तो मेरे को उसमें टेम्परामेंट आ जाएगा। तो मेरे को रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, रियलिस्टिक गोल रखने हैं, छोटे छोटे गोल रखने हैं, उनको अचीव करना है, और इससे मेरे को डेवलप उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। मेरे को मेंटर फाइंड आउट करने हैं, अकॉर्डिंगली आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेल्स के मार्केटिंग सेल्स के सारे केस स्टडीज। एंड नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा वो आपका मार्केटिंग के केस स्टडीज से हम डिस्कस करेंगे, तो विल गो फॉर दोज केस स्टडीज इन द मार्केटिंग।